question based on underwriting of shares and debentures, where we have to calculate the liability of underwriters. And the question is here. See, first understand the question, and after that we will going to solve it step by step. See, Noman Limited, company name is what? Noman Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. 80,000 equity shares issued by Noman Limited. Noman Limited issued what? 80,000 equity shares which were underwritten as follows. And as you all know, underwritten आ गया means gross liability ratio. ये सबको पता है. See, where Mr. A underwritten, Mr. A underwriter. See, there are three underwriters. Mr. A, Mrs. B and Company, Mrs. C and Corporation. मतलब ठीक है, ये three underwriters are there. So Mr. A underwritten 48,000 equity shares, Mrs. B and Company underwritten 20,000 equity shares, and Mrs. C and Corp underwritten 12,000 equity shares. Okay, no problem. So this is what shares underwritten by each underwriters. And as you all know, shares underwritten से ही आपका gross liability ratio निकलेगा. ये दिमाग में रखने का. That is what gross liability. Get it? Clear? Now see, the above mentioned underwriters. मतलब above mentioned मतलब जो ऊपर underwriters दिए बेटा, made application for firm underwriting. Firm, याद रखो, firm आ गया इधर. अभी तक का सम में फर्म नहीं आया था, अभी इधर फर्म आया. फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं भाई, समझा? फर्म मींस फिक्स्ड अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग मतलब इन्होंने कमिटमेंट कर दिया, भाई अगर पब्लिक खरीदे या ना खरीदे कोई टेंशन नहीं, हम इतना शेयर खरीदेगा ही. फर्म अंडरराइटिंग का कंसेप्ट बताया ना थियरी में. फर्म अंडरराइटिंग मतलब वो लाइबिलिटी फिक्स हो गई अंडरराइटर्स की, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे भाई अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा. दैट इज व्हाट फर्म अंडरराइटिंग. पता है ना सबको, थियरी में पता है ना, याद रखना ये सब, ठीक है? सो द above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows. Mr. A, firm underwriting is what? 6,400 equity shares. Okay. Mrs. B and Corp, Mrs. B and Company, firm underwriting is what? 8,400 equity shares. And Mrs. C and Corp, that is 2,400 equity shares. Okay. So these all are the firm underwriting of each underwriters. Of what? Each underwriters. Get it? Clear? Now, see the next. The total applications excluding firm underwriting. What? The total application excluding firm underwritings but including marked application were for 40,000 equity shares. ठीक है. अब बेटा जो टोटल एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. क्या बेटा? एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 40,000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है, कोई इशू नहीं. ओके. आफ्टर दैट क्या दिया है क्वेश्चन, पहले एक बार समझ लो सब लोग क्या क्या दिया है इसमें. याद रखना डेटा क्या है इधर. टोटल एप्लीकेशन जो भी है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, बराबर है? एक्सक्लूडिंग व्हाट? फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स. द मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज अंडर. ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन में मिस्टर ए 8,000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन मींस व्हिच बेयर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर्स. व्हाट? मार्क्ड एप्लीकेशन इज व्हाट? Which bears the stamp of underwriters. मतलब application which bears the stamp of underwriters. That is what marked application. Remember it. So marked application में 8,000 equity shares Mr. A है, Mrs. B and Corp 10,000 equity shares है, and Mrs. C and Corp, ठीक है, that is 4,000 equity shares. मतलब इतना भाई underwriters लोग ने मेहनत किया, बिकवा दिया. That is what marked application. The application which bears the stamp of underwriters. That is what known as marked application, dude. Got it? So, buddies, remember it. Marked application is what? Which the application which bears the stamp of underwriters. Clear, dude? Okay, buddies, dude. Chalo. Now, next, what is given here?
The underwriting contracts. Question ध्यान से समझो आप. The underwriting contracts provide that underwriters be given credit from firm application. Credit for what? Firm application. याद रखो क्या दिया इधर? Credit for what? Firm application आ गया इधर. ठीक है, तो मतलब ये फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट मिल रहा है. थियरी बताया ना मैंने, याद है ना? अगर अंडरराइटर्स को फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट मिलेगा तो कौन से रेशियो में जाता है? एक्चुअल रेशियो. याद रखना, याद रहना चाहिए सबको थियरी वो. ठीक है, मालूम पड़ा? देखने के लिए नहीं लिखा है, उसको याद रखो, वो यूज करना है अपने. अगर अंडरराइटिंग फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो याद रखो. तो फिलहाल इधर गिवन क्रेडिट मींस क्रेडिट गिवन है फॉर फर्म एप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यस, बराबर है, क्रेडिट है मींस क्या हो जाएगा? समझा? तो एक्चुअल रेशियो. किधर गया भाई क्वेश्चन? एक मिनट. बराबर है, दैट विल बी व्हाट? एक्चुअल रेशियो. हियर इट इज. ठीक है, चलो. सो फर्म एप्लीकेशन का देखो, द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड दैट अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन. क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो भाई क्या होगा? कौन से रेशियो में? एक्चुअल रेशियो. वो सॉल्व करते टाइम पे हम लोग देखेंगे. एंड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन. और आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट तो सबको पता है, वो तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जाता है, वो याद रखिएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. So credit for unmarked application be given in proportion to the shares underwritten. Shares underwritten मतलब वही ग्रॉस लायबिलिटी का जो रेशियो आएगा ना, शेयर्स अंडररिटन, उस रेशियो में आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट बाइफरकेट करना है. वो तो आप नहीं भी दिया रहता तो फिर वो उसी रेशियो में करते हो ना बेटा, है कि नहीं? You all are required to show the allocation of liabilities. Working will be considered as part of your answer. Okay, ठीक है. चलो वर्किंग्स वही नॉर्मल, क्या निकालना है अपने को? मार्क्ड एप्लीकेशन है, राइट है, तो भाई अब मार्क्ड एप्लीकेशन तो अनमार्क्ड कितना होगा, बस वही तो निकालना है. ठीक है, तो चलो ये आपका क्वेश्चन है. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय सॉल्विंग द सम. सॉल्यूशन, कंपनी नेम आपको पता ही है, मान लिमिटेड है. लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, यू आर कैलकुलेटिंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. और ये सब किस में होता है बेटा? नंबर ऑफ क्या? सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स में ही होगा ना, और किस में होगा? ठीक है, नंबर्स में होता है, अमाउंट नहीं है इधर. ठीक है, स्टेप पर्टिकुलर बेसिस. 3 underwriters are there, Mr. A, Mrs. B and company, Mrs. C corporation, and finally total. ठीक है, normal format. चलो, so let's get through it everyone. So the very first one is what? The very first one will be your gross liability. Okay, so step number 1, gross liability. So my dear students, gross liability, as you all know, it is given. Gross liability means shares underwritten by each underwriters. So you can see here, you all can see here that is shares underwritten is how much? See, equity shares means Nomal Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. Mr. A 48,000 underwritten, Mrs. B 20, Mrs. C 12. तो यही तो है, ये जो शेयर अंडर रिटर्न है, दैट इज व्हाट? योर ग्रॉस लाइबिलिटी पापा. यस, वेरी गुड, वेल डन सृष्टि, शाबाश. चलो, सो लेट्स पुट इट हियर. Mr. A, that is 48,000. Mrs. B 20,000. And Mrs. C, that is 12,000. And finally the total is what? 80,000. Total 80,000. And you can calculate gross liability ratio also. So your gross liability ratio, you can write in the basis column 48 is to 20 is to 12. Yes or no? Your ratio, gross liability ratio is what? 48 is to 20 is to 12. कैसा आया? 30 कैंसिल होएगा तो 48 is to 20 is to 12 ही आएगा ना रे बाबा. Got it? Clear? So this is what gross liability. सबसे first step. Liability of underwriters निकालने का the very first step is what? Yes, gross liability. Yes, well done, Richa. Perfect, perfect. Yes, you can simplify also. No need to worry.
If you want to simplify, you can simplify also. Yes, very good. चलो आ जाओ. Next, after gross liability, everyone knows what will come. Yes, marked application, the application which bears the stamp of underwriters, which shows the underwriter efforts. That is what marked application. अरे भाई अंडरराइटर ने एफर्ट किया है उसका, तो उस पे स्टैम्प बियर, जो स्टैम्प रहेगा वो किसका रहेगा? अंडरराइटर्स का ही रहेगा ना. अंडरराइटर ने मेहनत करके शेयर बिकवाया, तो दैट इज व्हाट मार्क्ड एप्लीकेशन, which bears the stamp of underwriters and which shows the underwriters efforts. चलो, सो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर बी, लेस what? Less what? Magged application. Magged application. ठीक है. अब marked application तो बेटा it will be in actual, which is given in the question. So you all can see the question. Yes, very good, Srishti. So see here. Where is it? Marked application. Here it is. Marked application were as follows. Mr. A 8,000, Mrs. B 10, and Mrs. C is 4,000. So write down 8,000, 10,000, and 4,000. Come on. So marked application is given here. So you have to put it here. That is 8,000. देखो अगर माइनस करना है तो आपको ब्रैकेट ऐसा करना है तो कर सकता है, बट जरूरत नहीं है. बराबर है, जिसको करना है कर सकता है, कोई इशू नहीं. 8,000, 10,000, and Mrs. C is what? 4,000. This is what marked application, and the total is what? 22,000. Total is what, beta? 22,000. Got it? Clear? चलो हो गया बेटा. चलो अब आपका मार्क्ड एप्लीकेशन तो हो गया भाई. ओके, नाउ कैलकुलेट व्हाट? बैलेंस as usual, as common. Dear students, so मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर लो बैलेंस. यस, परफेक्ट परफेक्ट. वेल डन चिन्मय, वेल डन सेजल, वेल डन सृष्टि. Perfect, perfect. So now your balance will be here. C. C is what? Your balance. Sure. So as we can calculate balance, yes, correct. So 40 minus 8, that is 48 minus 8, that is 40,000. 20 minus 10, that is 10,000. 12 minus 4, that is 8,000. And 80 minus 22 is 58,000. That's it. बराबर है, मालूम पड़ा. तो ये तो हो गया अपना बैलेंस. ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद बैलेंस. बेटा मार्क्ड के बाद क्या आता है? अनमार्क्ड. भाई मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन. यस, वेरी गुड. सो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. चलो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशो में जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में. एंड ग्रॉस लायबिलिटी इज व्हाट? 48:20:12. सी, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो इज व्हाट? 48:20:12. दिस इज जीएल. जीएल मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशो. ठीक है, बराबर है. बराबर. सो ग्रॉस लायबिलिटी रेशो. अच्छा, अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालेगा कैसा? देखो, अभी क्वेश्चन में बोला है ना, वर्किंग नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आंसर. एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देता हूं आपको. चलो, वर्किंग नोट नंबर 1. बेटा अभी आपको पता है टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है? मैंने क्या बताया? अनमार्क्ड एप्लीकेशन किसके बेस पे मिलता है, किसके बेस पे कैलकुलेट होगा? टोटल एप्लीकेशन कितना आया माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, सबको पता है. ठीक है, अब उसमें बोला है वर्किंग नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर, इसलिए इधर दिखा देता हूं. चलो, टोटल एप्लीकेशन आपको कितना रिसीव हुआ था? आपने देखा 40,000 शेयर्स. किधर है? यू कैन सी हियर. मेरे प्यारे बच्चों, my dear and lovely students, see here. Where is it? Here it is. The total application excluding firm underwriting but including marked application were 40,000.
तो टोटल जो एप्लीकेशन मिला है आपको वो कितना मिला है 40,000, बराबर है। टोटल एप्लीकेशन कितना है बेटा 40,000। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड है बेटा आपका 40,000 शेयर्स, ठीक है। 40,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है बेटा। इसमें से अंडर राइटर ने कितना एफर्ट किया, अंडर राइटर का एफर्ट माइनस कर दो। अंडर राइटर का एफर्ट मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन, भाई इतना शेयर तो अंडर राइटर ने अपनी मेहनत से बिकवाया, दैट इज व्हाट 22,000। तो बचा जो बैलेंस जो रिमेनिंग आया 18,000 शेयर्स, दैट इज व्हाट अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दैट्स इट, बराबर है। मतलब जो 18,000 शेयर्स आया बेटा दैट इज व्हाट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब ये एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने डायरेक्टली कंपनी से खरीदा, इसमें अंडर राइटर का एफर्ट नहीं है। अंडर राइटर का एफर्ट सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन में होता है, बराबर है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आ गया 18,000 शेयर्स, बट अनमार्क्ड का भी बेनिफिट अंडर राइटर को इनडायरेक्टली मिल ही जाता है, बराबर है, क्योंकि उसने पहले ही शेयर्स अंडर रिटर्न कर लिया, गारंटी दे दी भाई हम बिकवाएंगे, ठीक है। अब पब्लिक ने डायरेक्ट खरीद लिया तो हमारी क्या गलती है, हम तो मेहनत कर ही रहे थे, ठीक है। सो मार्क्ड एप्लीकेशन 22 और बाकी पब्लिक ने खरीदा 18,000, तो दैट इज व्हाट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। चलो सो मेरे प्यारे बच्चों, सो आ जाओ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन किधर गए हम लोग, हियर इट इज। तो आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया 18,000, सो राइट डाउन हियर 18,000 टोटल में। फर्स्ट यू हैव टू शो इट हियर, फर्स्ट 18,000. Now, bacha, 18,000 will be bifurcated in the ratio of gross liability. So bifurcate it, 18,000 को divided by what 48 plus 20 plus 12 कितना होता है, डिवाइड करो। हाँ 18,000 divided by 80 into 48 is equal to 20 is equal to और 12 is equal to, तो आंसर मिल जाएगा आपका। ओके वेरी गुड। सो पहले का आया 10,800, शाबाश, वेल डन एवरीवन। 10,800 आया, सेकंड वाले का आ रहा है 4,500 एंड थर्ड वन आ रहा है 2,700। क्या बात क्या बात क्या बात, शाबाश बच्चों। चलो सॉरी, चलो अभी बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। डी डन। नाउ ई ई ई ई बैलेंस। चलो so 40,000 minus 10,800 will come 29,200, yes or no, बराबर है 29,200, वेरी गुड। फिर 10,000 minus 4,500 will come for 5,500 and 8,000 minus 2,700 is 5,300, well done everyone। और इधर आपका आ गया 40,000, शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन, शाबाश, वेल डन श्वेता, वेल डन चिन्मय, वेल डन सृष्टि, परफेक्ट, वेल डन नंदिनी, वेल डन रिचा, परफेक्ट आंसर, सही है। चलो आ गया सबका ये। अच्छा अब ये बैलेंस के बाद, अभी ये फर्म अंडर राइटिंग है, फर्म अंडर राइटिंग है और फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट मिल रहा है अंडर राइटर्स को। तो अब क्या करना है आपको, लेस, इधर दिखा देना ई एफ। तो पहले फर्म अंडर राइटिंग आपको फॉर्मेट बताई है मैंने, लेस होगा फर्म अंडर राइटिंग। सो फर्स्ट इट विल बी डिडक्टेड, फर्म अंडर राइटिंग पहले डिडक्ट होना चाहिए, वो भी एक्चुअल जो दिया है वो। देखो क्या बोला है मैंने, इफ द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू ईच अंडर राइटर, तो एक्चुअल जो दिया रहेगा, तो एक्चुअल रेशो क्या है इनका, एक्चुअल क्या दिया है फर्म अंडर राइटिंग का, एक्चुअल देखो। हाँ अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया रहता तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जाता, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में अपने को डिडक्ट करना पड़ता, बट क्रेडिट गिवन है फॉर फर्म एप्लीकेशन, सो एक्चुअल देखो, एक्चुअल किधर है, फर्म अंडर राइटिंग, ये रहा। The above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows.
6400, 8000, 2400. दिस इज व्हाट एक्चुअल, बराबर है, मतलब एक्चुअल में जो दिया है वो. तो लेट्स डू इट. सो एक्चुअल में आपको कितना दिया था? 6400, देन आपका 8000 एंड देन 2400, और टोटल मिला के आपका कितना हो गया? 16800. बराबर है कि नहीं? 16800. यस, बराबर. चलो अभी आ जाओ. चलो अभी फॉर्म अंडर राइटिंग अपना डन हो गया बच्चा, फॉर्म अंडर राइटिंग डन हो गया. अब माइनस करके फिर वही चीज बैलेंस निकाल लो. देखो क्या बताया, पहले फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करना है, बाद में क्या करना है? प्लस करना है, याद रखना. चलो तो आ जाओ, बैलेंस निकालो जरा सब लोग. व्हाट विल बी द बैलेंस? बैलेंस. सो क्या बैलेंस आ रहा है बेटा? बैलेंस कैसे निकालेगा पता ही है आपको? चलो सो 29,200 माइनस 6,400 कितना आया? 22,800. 5,500 माइनस 8,000. ओहो इधर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब क्रेडिट आ गया इसका. मैसेज बी का क्रेडिट आ गया. कितना क्रेडिट आ गया? 2,500 क्रेडिट. एंड हियर 5,300 माइनस 2,400, 2,900. और फाइनली 40,000 माइनस 16,800, दैट इज 23,200. डन, क्लियर. चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्रेडिट आया है 2,500, बराबर है, मैसेज बी का जो क्रेडिट है वो अदर अंडर राइटर्स में एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है. तो इसका क्रेडिट अदर अंडर राइटर्स कौन है? मिस्टर ए और मैसेज सी. तो उनको एडजस्ट कर दो, बराबर है. और क्रेडिट एडजस्ट करते तो कौन से रेशो में करते बेटा? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में. ये पहला मिस्टर ए को होगा और सी को, तो रेशो क्या बन गया? 48:12. तो आ जाओ नेक्स्ट. लेस. लेस व्हाट बेटा? क्रेडिट ऑफ व्हाट? क्रेडिट ऑफ बी एडजस्टेड. क्रेडिट ऑफ अंडरराइटर बी एडजस्टेड. नहीं तो क्रेडिट एडजस्टेड लिख देता हूं खाली बस, बराबर है. व्हाट? क्रेडिट एडजस्टेड लिख देता हूं. चलो क्रेडिट ऑफ मेसर्स बी एंड कंपनी एडजस्टेड. क्रेडिट ऑफ मेसर्स बी एंड कंपनी एडजस्टेड. चलो सो इन विच रेशो क्रेडिट एडजस्ट होता है? तो इट शुड बी इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो. किसको एडजस्ट होगा बेटा? ए और सी को. तो ए और सी का लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो क्या बनता है? 48:12. ठीक है. चलो 2,500 को 48:12 में बाइफरकेट करो. तो 2,500 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 12 कितना होता है? 60. डिवाइड बाय 60 इंटू 48 इज इक्वल टू कितना आया? ओके गुड गुड, शाबाश. ठीक है. तो पहले वाले को आ रहा है 2,000 और सेकंड वाले को मिलेगा 500. वही आ रहा है, बराबर है. 48:12 कितना आ रहा है? राइट. सो 2,500. वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश. ठीक है. सो 2,000 करने का ना, इधर 2,500 है, कैलसी लो. 2,500 डिवाइड बाई 60 किया, उसके बाद क्या है अपना? 48 इज इक्वल टू और फिर 12 इज इक्वल टू, बराबर. तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब राउंड ऑफ करेगा तो 2,000 हो जाएगा और 499 पॉइंट ये हो जाएगा 500. तो चलो तो कितना आ गया? ये 2,000, बराबर है, और इधर 500. और ये भाई साहब का तो निकल लेगा इधर से, इनका तो जीरो हो जाएगा.
और इधर भी सब नील हो जाएगा, 2500 और ये माइनस, तो इधर नील, 0। ठीक है, चलो ये भी डन। चलो अब ये भी डन हो गया। अब उसके बाद फिर से अपना बैलेंस निकालो। ठीक है, बैलेंस, चलो बैलेंस 22,800 माइनस 2,000 दैट इज 20,800। ये तो नील हो जाएगा बेटा, ये गया, निकल लिया, इसका खत्म हो गया। 2900 माइनस 500 दैट विल बी व्हाट, 2400, बराबर है 2400। चलो फाइनली 20,800 प्लस 2400 विल कम। ये तो इधर से भी कर लो या फिर ये साइड से भी कर लो, तो 23,200 ही रहेगा। दैट्स इट, बराबर है कि नहीं, क्लियर हो गया सबका? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। अभी बैलेंस आने के बाद फाइनली फर्म अंडर राइटिंग था ना, पहले लेस किया था ना, अब फाइनली आप इसको क्या कर दोगे बेटा, एड अप। तो जो फर्म अंडर राइटिंग था, जो पहले लेस हुआ था, अब उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। देखो, कभी भी नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स निकालना है आपको, तो आपको फर्म अंडर राइटिंग भले आपने पहले माइनस किया, लेकिन वो फाइनली ऐड होना ही चाहिए, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग मतलब वो अंडर राइटर्स को लेना ही है, वो खरीदना ही है, अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी फिक्स है वो। ठीक है, तो फाइनली नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर दो। फर्म अंडर राइटिंग, और कौन से रेशो में जाएगा ऐड, वही नॉर्मल एक्चुअल रेशो। ऐड आपका एक्चुअल रेशो में ही होने वाला है। तो एक्चुअल रेशो मतलब वही, एक्चुअल कितना दिया था, एक्चुअल 6400 है, 8000 है और 2400। सो 6400, अच्छा हाँ, इसका फॉर्म अंडर राइटिंग है ना, तो इसका तो आ जाएगा भाई इधर भी बेचारा। 6400 और 8000 फॉर्म अंडर राइटिंग है ना, तो नील हो चाहे कुछ भी हो, लेना पड़ेगा। और फिर 2400, चलो टोटल हो गया 16800। कितना हो गया, 6400 प्लस 8000 प्लस 2400 कितना हो गया, 16800, बराबर। चलो बच्चों, अब नेट लाइबिलिटी निकाल लो। So what will be your net liability? Net liability of each underwriter निकालो. So now final match will be what? Net liability. क्या बेटा? Net liability of underwriters. Now this will be what? Net liability of each underwriters. ठीक है? तो चलो प्लस करो और नेट लाइबिलिटी निकाल लो। अब तो करना क्या है, बस प्लस करो, ऐड करो, खत्म हो गया। 20,800 प्लस 6,400 will come 27,200, 27,200, बराबर। यस, सेकेंड वन बेचारा नील होने के बाद भी 8,000 का इसका लाइबिलिटी बन गया, बिकॉज फॉर्म अंडर राइटिंग था। ठीक है, राइट। देन 2400 प्लस 2400 दैट इज 4800, और टोटल अपना हो गया 40,000। 23,200 प्लस 16,800 विल कम 40,000। दैट्स इट, बराबर बच्चा, हो गया, फिनिश, दैट्स ओवर, दैट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट योर नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर्स। ठीक है, देख लिया। तो लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग है, तो फर्म अंडर राइटिंग मतलब भाई फिक्स लाइबिलिटी है, वो लास्ट में फाइनली ऐड करना ही पड़ेगा। और ऐड करने के बाद ये मालूम पड़ा कि मिस्टर ए कंपनी का 27,200 शेयर्स खरीदना ही पड़ेगा इसको, बराबर है। 27,200 शेयर्स खरीदेगा और कंपनी को पैसा देगा। मेसर्स बी एन कंपनी 8,000 शेयर्स खरीद के पैसा देगा। मेसर सी एन कॉर्पोरेशन 4,800 शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा देगा, बराबर है। और अगर इनका कमीशन, देखो इनका कमीशन रहेगा अंडर राइटिंग कमीशन, तो वो एडजस्ट कर लेंगे, जैसा हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज में कैसे एडजस्ट होता है, वो एडजस्ट करके, बराबर है। अभी समझो इसका लाइबिलिटी बन रहा है कितना, एज्यूमेट की 1 लाख बन रहा है, और कमीशन भी है इसका समझो 10,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 एडजस्ट करके 90,000 कंपनी को दे देगा, खत्म, बराबर है। सो दिस इज व्हाट नेट लाइबिलिटी ऑफ
each underwriter. This is how we can calculate our what net liability of each underwriter. हर अंडरराइटर्स का नेट लायबिलिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बेस था अपना फर्म अंडरराइटिंग के ऊपर. तो फर्म अंडरराइटिंग में खाली क्या आपका डिफरेंस आया कि पहले आपको लेस करना है, और एक्चुअल कभी लेने का जब फर्म अंडरराइटर का बेनिफिट, देखो जब फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट मिलेगा अंडरराइटर्स को तो एक्चुअल रेशियो रहेगा, और अगर फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो एक्चुअल नहीं है. तो कौन सा रेशियो आएगा, थ्योरी में बताया ना मैंने, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिला तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, बराबर है. तो इधर तो फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट मिल रहा है अंडरराइटर्स को, इसलिए एक्चुअल रेशियो है, क्रेडिट दिया है. अगर नहीं मिलेगा फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इधर आ जाएगा, जो कि थियरी में बताया मैंने, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू टाइप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में उसका क्वेश्चन रहता ही है फिक्स. ठीक है. तो फाइनली नेट लायबिलिटी ऑफ ईच, नेट लायबिलिटी देख लिया आपने, और टोटल 40,000 हो गया, बराबर है. टोटल एप्लीकेशन देखो रिसीव हुआ था 40,000, इधर 40,000 नेट लायबिलिटी हो गई, 40 + 40 80,000 हो गया ना, कंपनी इशू कर रही है 80,000, खत्म, बराबर. तो ये था अपना क्वेश्चन, क्लियर. बराबर है. तो इसी से रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिस दिया, वो सॉल्व करना है, जस्ट उसके ऊपर या नीचे देखो एक सम दिया है मैंने, उसको प्रैक्टिस में करना है, वो भी फर्म अंडरराइटिंग से रिलेटेड ही है. ओके.